So once again, welcome to my YouTube channel Technical DNA. So guys, let's continue our Python series और आज हम सीखेंगे Python में लिस्ट के बारे में. So लिस्ट क्या होते हैं? So before and starting anything else, as normally, मैं सबसे पहले अपने उस फोल्डर में चला जाता हूँ जहाँ पे हम अपना काम करते हैं, I mean कोडिंग करते हैं. So Volume 70, volume 85. Voice of variant rate 50, rate 40, rate 40. मैंने अपना स्पीच रेट डिक्रीज कर लिया है, डार्क मोड इज अनेबल और मैं Run यहाँ dialog, पे type the name, जाता हूँ select D colon. डी Local disk कोलन left पे parent, D colon right parent, dash, file explorer, items view py, Python dummy, Python practical, Python masters, Python YouTube lectures 50, यहाँ items पे view list, गया strings not selected, one of, और यहाँ पे मैं एक और फोल्डर बना लेता हूँ new folder edit, ts, लिस्ट. list 2 of 2, items view list, this folder, और यहाँ पे हम करेंगे अपनी सारी की सारी कोडिंग. मैं आप address bar edit, select FD, कमांड प्रॉम्प्ट. CMD, list dash, explorer, C colon backslash windows backslash system 30, ओके गाइस, सो system menu, मैंने C कमांड colon, प्रॉम्प्ट ओपन कर लिया है. मैं कमांड प्रॉम्प्ट की सेटिंग्स चेक कर लेता हूँ, command फॉन्ट prompt, साइज एंड ऑल. D colon backslash Python YouTube lectures back, space, command prompt terminal, D colon backslash Python, system menu, restore move size minimum max close settings. सेटिंग्स Settings. Close navigation but level 1 start of 1 of 8. Interaction not appearance not color schemes not rendering not color appearance not selected 3 of 8. अपीयरेंस Open JSON appearance button application theme position of movie hide the title bar show tabs and use acrylic use active always on top tab width mode group pane animations always display an eye terminal and automatically hot display a shield allow acrylic with save button save the start change it close navigation appearance 3 of 8 level 1 color scheme rendering not compatible actions not new tab men defaults not Windows PowerShell not command prompt not selected 3 of 5 level. कमांड प्रॉम्प्ट Open JSON command prompt name colon command line colon reset to inherit starting directory icon colon tab title colon run this profile as an hide profile from appearance button terminal emulation button appearance button space save button save the start change it close navigate command prompt open JSON file command prompt color scheme colon combo box Campbell font face grouping font face group show all fonts checkbox not checked if font size grouping font size spin button size of the font and points font size minimum 1 maximum 128 edit selected 12 12 है. मैं इसको 13 12 3rd 4th 5th 6th 17 18 19 20 20 कर देता हूँ. line height grouping line height spin button cell width grouping cell width font weight grouping font weight combo box normal collapsed medium semi dash bold बोल्ड कर दिया. variable font built in full retro automatic cursor background intense background enable padding scroll save the close navigation the start save button save all unsaved setting scroll with save button save all space the start changes button the start all save button save all space the start close navigation button space command prompt 3 of 5 level 1 open JSON command open navigation the start changes button the start all unsaved save button save all space the start changes save scroll visibility save button save all unsaved settings the start changes button the start all open navigation button command prompt 3 of 5 level 1 तो list dash settings column 1 1 of 2 settings command do you want to close all tabs dialog close all button cancel button space command prompt 3 of 5 level 1 Azure Cloud Shell command prompt 3 of list dash settings column 1 settings command prompt 3 of do you want to close all tabs dialog close cancel button close all but space list dash file explorer address bar edit CMD list dash C colon back ओके गाइस, सो Cascadia mono very light gray on black ओके गाइस, सो space मैंने अपना कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लिया है और System मैं menu. यहाँ पे X, क्लिक C, colon. करता हूँ अपना सबसे पहला LTE PhD notepad space PROGRAM 1 program 1 PY प्रोग्राम D colon backslash 1.5. Python notepad no yes button space program 1.py unmodified tab so- selected 1 of 1 blank फाइन pop up window learn more link learn more program 1.py tab blank फाइन. मैं restore unavailable program 1. ओके गाइस, सो अब हम सीखते हैं कि लिस्ट के बारे में कि लिस्ट क्या होते हैं. सो गाइस, लिस्ट पाइथन में क्या होते हैं, मैं ये शुरू करने से पहले थोड़ा सा रिवाइज कराता हूँ कि स्ट्रिंग्स के बारे में हमने क्या पढ़ा था. तो स्ट्रिंग्स के बारे में हमने ये पढ़ा था गाइस कि स्ट्रिंग is a kind of data type which is nothing but a list of characters, and in the data type all the characters are stored in a sequential order, right? यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया. blank नाउ थोड़ा सा आते हैं लिस्ट के ऊपर. लिस्ट क्या है और इसकी जरूरत क्यों पड़ी. blank तो जैसे कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी, इसको मैं स्टार्ट करता हूँ एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट के साथ, ठीक है. सो फॉर एग्जाम्पल हमें ये पता है कि एक वेरिएबल के अंदर हम कोई डेटा स्टोर कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे स्टोर कर लिया X x space equals space 1 0 वैसे ही मैं एक और वेरिएबल में डेटा स्टोर कर 10 सकता हूँ y space equals space 2 0 20 गाइस, राइट. पर मेरा blank. क्वेश्चन ये है कि अगर फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कुछ ऐसी कंडीशन आ जाए जहां पे कि मुझे लार्ज नंबर ऑफ डेटा स्टोर करना है विथ लार्ज नंबर ऑफ डेटा स्टोर करना है ऑफ सेम टाइप और सेम कैटेगरी. जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, मुझे किसी क्लास के सारे स्टूडेंट्स के नेम स्टोर करने हैं या सारे स्टूडेंट्स के एज स्टोर करने हैं, मुझे कुछ ऐसा स्टोर करना है
या जितने भी यूजर्स मेरे वेबसाइट में ऐप में लॉग्ड इन है, मुझे उन सबकी ईमेल आईडी एक्सेस करनी है, सो दैट आई कैन सेंड एन ईमेल, प्रमोशनल ईमेल टू ऑल यूजर्स। Blank. ऐसा कुछ करना है। तो मैं ऐसे लार्ज नंबर ऑफ डेटा को मैं कैसे हैंडल कर सकता हूँ? अगर मैं इसको अभी के नॉलेज के अकॉर्डिंग इम्प्लीमेंट करने का ट्राई करूँ, तो मेरे पास लिमिटेशन क्या आती है, मैं आपको दिखाता हूँ। कि अगर मैं X, एक्स X इक्वल space टू equals space पहले बंदे का एज स्टोर करता हूँ 0, 20, 20. Y वाई space इक्वल equals टू space दूसरे बंदे का एज स्टोर करता हूँ 1, 9, 19, 19. Z तीसरे space बंदे का equals एज space स्टोर करता हूँ 1, 7, 17। 17. तो मैंने तीन एजेस स्टोर कर लिए। अब चौथे के लिए क्या मैं चौथा वेरिएबल बनाऊं, पांचवे के लिए पांचवा वेरिएबल बनाऊं, और 10 होंगे तो क्या मैं 10 वेरिएबल बनाऊं? ये तो कहीं से सेंस नहीं बनाता ना गाइस। अच्छा, मैंने बना भी लिया 10 वेरिएबल। अगर 100 हो तो क्या 100 वेरिएबल बनाऊं? 200 हो तो क्या 200 बनाऊं? और अगर जैसे कि मुझे सारे यूजर्स की ईमेल आईडी एक्सेस करना है, तो मेरे वेबसाइट में 200, 300, 400, 500, और अमेजन जैसी बड़े बड़े कंपनीज की बात करो तो उनके पास तो मिलियंस ऑन बिलियंस में डेटा होता है यूजर्स का। तो क्या वो मिलियंस एंड बिलियंस में ऐसे वेरिएबल बनाने बैठेंगे गाइस? ये तो पॉसिबल नहीं है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है हमारे पास है कि अगर डेटा हमारे किसी एक्सटर्नल सोर्स से जैसे फाइल्स से या डेटाबेस से आ रहा है, जो डेटा हम रिट्रीव करना चाहते हैं, उसको अगर हमें अपने प्रोग्राम में फॉर सॉर्ट ऑफ टास्क अगर हमें स्टोर करना है, तो हमें तो पता ही नहीं ना कि हमें कितने नंबर ऑफ डेटा के साथ डील करना है। तो हम कैसे उतने वेरिएबल्स बनाएंगे? समझ रहे गाइस? तो X equals अब blank. हमें n नंबर ऑफ डेटा स्टोर करना है, तो हम n नंबर ऑफ वेरिएबल नहीं बना सकते, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि n नंबर ऑफ n की वैल्यू क्या है गाइस। ओके, सो नाउ Blank. हमें कुछ ऐसा मेथड चाहिए था जिसकी हेल्प से हम एक वेरिएबल के अंदर ही मल्टीपल डेटा, या हम कह सकते हैं कि n नंबर ऑफ डेटा स्टोर कर सकते हैं। क्या ऐसा कोई तरीका है? यस गाइस, ऐसा तरीका है। तो हमारे पास से इंटीजर, फ्लोट एंड स्ट्रिंग और बूलियन के अलावा हमारे पास एक जो फिफ्थ कैटेगरी की डेटा टाइप निकल के आती है, उसे हम लोग बोलते हैं गाइस लिस्ट। हाँ, वही लिस्ट गाइस जो हम लोग नॉर्मल डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। बट इस लिस्ट का काम होता है कि विद इन अ वेरिएबल टू स्टोर मल्टीपल डेटा टाइप्स या मल्टीपल वैल्यूज ऑफ मल्टीपल डेटा टाइप्स। ठीक है, तो ये इस काम में Blank. आता है। तो इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं? तो सबसे पहले तो आपको एज यूजुअल जब भी हमें कोई वैल्यू या डेटा टाइप स्टोर करना होता है, सो हम एक वेरिएबल में उसको स्टोर करते हैं, सो दैट कि वी कैन एक्सेस इट इन फ्यूचर। सो X. एक्स X space इक्वल equals टू, space. अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ, अब मुझे यहाँ पे अपनी लिस्ट मेंशन करनी है, स्पेसिफाई करनी है। तो मैं यहाँ पे गाइस यूज करूंगा ब्रैकेट्स। कौन से ब्रैकेट? स्क्वायर स्क्वायर ब्रैकेट्स, यानी कि ये Left लेफ्ट bracket. ब्रैकेट और ये Right bracket. राइट ब्रैकेट। अब ये ब्रैकेट्स कहाँ से Right आते हैं bracket. गाइस? Left ये bracket. वही Right bracket. ब्रैकेट हैं जो पी के बगल में होते हैं, जिनको आप विदाउट शिफ्ट के साथ प्रेस करोगे तो ऐसे वाले ब्रैकेट्स बनते हैं। ठीक है, बिल्कुल पी के जस्ट नेक्स्ट टू द पी लेफ्ट ब्रैकेट एंड जस्ट नेक्स्ट टू इट राइट ब्रैकेट। ठीक है, Left bracket. Right bracket. ओके। सो इसको हम लोग बोलते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स इन लेमन टर्म्स, बट इन टेक्निकल टर्म्स इट इज कॉल्ड स्क्वायर ब्रैकेट्स और X ब्रैकेट्स। equals left bracket. Right bracket. ओके गाइस, Blank. तो अब हमारे पास ये ब्रैकेट्स आ गए। ये Caret left बिल्कुल bracket. उसी की तरह है जैसे Space. हम Space. स्ट्रिंग्स में Quote. Quote. कोड कोड के अंदर अपना टेक्स्ट इनक्लोज करते थे। Quote. Quote. तो वैसे ही अगर हमें मल्टीपल डेटा स्टोर करना है तो हम उसको विद Left इन bracket. Right bracket. ब्रैकेट्स स्टोर करते हैं या इनक्लोज करते हैं। Right bracket. ठीक है, तो पहली चीज तो ये हो गई गाइस। अब इन ब्रैकेट्स के अंदर आपको वैल्यूज स्टोर करने हैं, और वैल्यूज कैसे स्टोर करना है? आप सिंपली वैल्यूज लिखो जो भी आपको स्टोर करना है, एंड सेपरेट देम विथ कॉमा। ठीक है, तो कॉमा सेपरेशन में एक रूल होता है कि अगर हमारे पास n नंबर ऑफ वैल्यू है, तो 1 से लेकर के n माइनस वन तक के बीच में कॉमा होंगे, पर जो nth वैल्यू होती है यानी कि जो लास्ट वैल्यू होती है उसमें हम कॉमा नहीं लगाते। जैसे मैं एग्जांपल Left दूं, bracket. Right bracket. तो 1, 1. 1 comma. 2. 2, 2 comma. 3. 3। तो अगर मुझे तीन वैल्यूज स्टोर करनी है तो मैंने लिखा 1, 2, 3। अगर मुझे चार वैल्यूज स्टोर करनी होती तो 1, 2, 3, 4। ठीक है, X equals left bracket. 1, 2, 3 right bracket. ओके। Blank. सो मैंने इसको ऐसे स्टोर कर लिया। नाउ अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ, P. प्रिंट R. I. N. T. Print left parent. X.
X right parent. सेव करता हूँ C colon back C colon और रन करता हूँ PY. AON hyphen space PROGRAM. 1. Program 1 PY. तो I C colon backslash window. Program C colon backslash P Y T H O N space PROGRAM 1 dot PY space. Left bracket 1 2 3 right bracket D colon. तो यहाँ पे हमारे पास ये जो लिस्ट है Program 1. वो डिस्प्ले हो जाएगी। अंडरस्टैंड गाइस? ओके, तो ये तो हो गया एक चीज। Blank. अब अगर हमें इस लिस्ट में से कोई एक पर्टिकुलर डेटा को रिट्रीव करना है, जैसे हम स्ट्रिंग में से किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर को हम रिट्रीव करते थे, वैसे ही अगर हमें किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर को अगर हमें सॉरी वैल्यू को अगर हमें रिट्रीव करना है तो हम उसको भी बिल्कुल पोजीशन नंबर से ही, या टेक्निकली बोले तो इंडेक्स नंबर से रिट्रीव कर सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम स्ट्रिंग्स में इंडेक्स नंबर से कैरेक्टर गेट करते थे। और इसका सिंटेक्स भी बिल्कुल सेम रहने वाला है कि प्रिंट Print left parent, right parent. और यहाँ पे X left bracket. पोजीशन नंबर लेट से 1 1 right bracket. सेव करता हूँ। C colon backslash Python YouTube lectures back left bracket 1 2 3 right bracket 2 D colon back. तो जो Blank 2 left bracket 1 पहली 2 3 right वैल्यू bracket. वो तो लिस्ट है जो मैंने प्रिंट एक्स किया था, दूसरी वैल्यू प्रिंट एक्स से 1 से आया है 2। Program. ओके गाइस, और यहाँ पे आप बिल्कुल स्लाइसिंग भी कर सकते हो, यानी कि अगर आपको जैसे आपके लिस्ट में 10 वैल्यूज हैं और आपको शुरुआत की 3 वैल्यूज चाहिए, बीच में से कोई n नंबर ऑफ वैल्यूज चाहिए, तो आप उसको भी मेंशन कर सकते हो, जैसे हमने स्ट्रिंग स्लाइसिंग में किया था गाइस। आई होप आपको याद होगा, मैं एक बार करके दिखा भी देता हूँ। सो लेट्स से अगर मेरे पास मुझे सिर्फ शुरुआत के 2 वैल्यूज चाहिए तो प्रिंट Print left parent, right parent. और यहाँ पे मैं लिखता हूँ X left bracket 0 colon 2 right bracket. सेव करता हूँ। C colon backslash pipe left bracket 1 2 3 right bracket 2 left bracket 1 2 right bracket D colon. तो इस तरीके से Program 1. मुझे वैल्यूज मिल जाएंगे। और यहाँ पे स्लाइसिंग के वो सारे रूल्स एप्लीकेबल होते हैं जो स्ट्रिंग में हमने देखा था। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे print left parent X left bracket colon dash 1 लिखता हूँ, right bracket right parent. ये जो लिस्ट है वो रिवर्स ऑर्डर में C colon back. देखिए Program 1 C colon backslash left bracket 1 2 3 right bracket 2 left bracket 1 2 right bracket left bracket 3 2 1 right bracket D colon back. ठीक है गाइस, आई होप आपको समझ Program. होगा। अब हम बात करते हैं कि इसका फायदा क्या होगा। अगर मान लीजिए कि लिस्ट में हमने डेटा को स्टोर किया तो इसका फायदा क्या होगा। सबसे पहले तो मैं दूसरा नोटपैड विंडो ओपन कर लेता हूँ। Notepad no yes button space program 2.blank. फाइन, अब बात करते हैं कि इसका फायदा क्या होगा गाइस। सो लेट्स से मैं अज्यूम करता हूं कि जब भी अगर मैं वेरिएबल्स, थोड़ा सा अगर मैं आपको याद कराऊं कि वेरिएबल्स के बारे में, तो वेरिएबल्स के लेक्चर में मैंने क्या बताया था। व्हाट आई हैव टोल्ड इन द वेरिएबल्स लेक्चर इज दैट कि अगर मैं कोई वेरिएबल स्पेसिफाई करता हूं, लेट्स से एक्स, सो ये और इसके अंदर कोई वैल्यू स्पेसिफाई करता हूं जैसे 1, तो ये जो एक्स नाम का जो वेरिएबल है गाइस, तो होगा क्या कि जो 1 है वो स्टोर हो जाएगा किसी तो एक मेमोरी में, रैम के किसी तो एक मेमोरी एड्रेस पे स्टोर हो जाएगा। ठीक है, लेट्स से मैं इसको नाम देता हूँ number 1000 1000 x equals 1 number 1000 इस तरीके से। blank. अब अगर मैं कोई वेरिएबल y space equals space करता हूँ 2, तो ये किसी भी रैंडम लोकेशन पे स्टोर हो सकता है मेमोरी एड्रेस पे, जैसे कि मैं इसको 2003 y equals to number 2003 इस तरीके से किसी एक जगह पे स्टोर हो गया फॉर एग्जांपल, blank. राइट। अब प्रॉब्लम मेरे पास क्या है। प्रॉब्लम मेरे पास ये है कि पहले तो 2 अलग अलग वैल्यूज के लिए मैंने 2 अलग अलग रेफरेंस नेम इस्तेमाल किए, जो कि वेरिएबल की पहली लिमिटेशन है। ठीक है, ये लिमिटेशन नहीं है, ये कह सकते हैं कि इट इज अ सिचुएशनल लिमिटेशन, क्योंकि वेरिएबल अगर नहीं होगा इस तो यू नो कि कुछ काम ही करना पॉसिबल नहीं है, राइट। ओके, y equals to number 2003 ओके, blank. एक तो लिमिटेशन ये हो गई। दूसरा अगर हम ये देखें कि अगर मुझे पहली वैल्यू को गेट करना है यानी कि 1 और दूसरी वैल्यू को गेट करना है यानी कि 2, तो आप देखो कि पहली वैल्यू किसी एक रैंडम मेमोरी एड्रेस पे है, दूसरी वैल्यू अगेन किसी रैंडम मेमोरी एड्रेस पे है, तो इंटरप्रेटर को या कंपाइलर को फाइंड करना पड़ेगा घूम घूम के रैम के अंदर कि कौन से लोकेशन पे है। ठीक है, इसको आप ऐसे समझिएगा इसकी, जैसे कि एक बंदा बैठा है दिल्ली में
और एक बंदा बैठा है फॉर एग्जांपल पंजाब में। तो अगर फॉर एग्जांपल किसी बंदे को लेटर के थ्रू अगर मैसेज पहुंचाना है तो उसको पहले दिल्ली पहुंचना पड़ेगा, फिर पंजाब पहुंचना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से हमें करना पड़ेगा। पर मैं दूसरा केस देता X हूँ, equals अगर blank फॉर blank एग्जांपल blank X x X space इक्वल्स equals space 1 वन space number स्टोर हो, लेट्स से 1000 1000 पे, X equals 1 number 1000 blank और y P इक्वल्स टू P Y space equals space 2 टू 2 space स्टोर number हो 1001 Y equals 2 number 1001 1001 पे। blank ऐसे ही Z z Z space स्टोर equals हो, space 3 space number 100 2 Z equals 3 number 1002 तो बेसिकली यहाँ पे blank क्या हो रहा है गाइस कि अब जो मेमोरी एड्रेस है वो एक सीक्वेंशियल ऑर्डर में है। तो इतना मुझे पता है कि अगर मुझे 3 गेट करना है तो 1 जहां से शुरू हो रहा है उसके जस्ट थर्ड लोकेशन में मुझे 3 मिल जाएगा। ये बिल्कुल ऐसे है गाइस कि जहां पे वो 2 बंदे 3 बंदे अलग अलग स्टेट जैसे दिल्ली पंजाब में रह रहे थे, अब ये जो तीनों लोग हैं, दोनों लोग हैं जिनको मुझे लेटर पोस्ट करना है, वो सेम सोसाइटी में या सेम लोग फ्लैट में रह रहे हैं लेट से। ठीक है, तो ये ऐसे है। blank तो बेसिकली जब X भी हम equals blank कोई वैल्यू स्टोर करते हैं, लेट से मैंने यहाँ X पे X x space इक्वल्स equals टू space इसके left bracket 1 अंदर 1 comma 2 2 comma 3 3 right bracket ठीक है, तो होगा क्या कि अगर ये x नाम का वेरिएबल 1000 मेमोरी लोकेशन पे स्टोर हुआ है, दैट इज एन एग्जांपल मेमोरी एड्रेस। ठीक है, तो ये श्योर है कि 2 जो है इसके जस्ट बाद ही स्टोर होगा कहीं पे, और 3 जो है इसके जस्ट बाद। तो पहली चीज तो यह कि वैल्यूज बेसिकली बिखरे हुए नहीं, इट इज एन सिक्वेंशियल ऑर्डर। ठीक है, तो ये तो सबसे पहला फायदा हुआ। दूसरा कि यहाँ पे मुझे अलग अलग वेरिएबल नहीं क्रिएट करना पड़ा, सबसे पहली चीज तो ये हो गई। ठीक है, कि मुझे अलग अलग वेरिएबल्स के नाम याद रखने की जो प्रॉब्लम है वो खत्म हो गई। मुझे पता है एक ही वेरिएबल है जिसके पहले पोजीशन पे पहली वैल्यू, दूसरे पोजीशन पे दूसरी वैल्यू एंड nth पोजीशन पे nth वैल्यू मेरी एग्जिस्ट करती है, राइट। तो ये blank कुछ फायदे होते हैं लिस्ट के गाइस। और लिस्ट को अगर हम अलग अलग कॉम्बिनेशन जैसे लूप्स और कंडीशंस के साथ यूज करें तो X बहुत equals कुछ इसके आउटकम्स निकल blank सकते हैं, बट अभी blank फोकस नहीं करेंगे, इट इज एन एडवांस कॉन्सेप्ट, राइट। हम उसको लेटर ऑन देखेंगे। blank नाउ अब बात करते हैं blank कुछ अदर टूल्स के बारे में लिख के। तो जैसे कि अगर मैं यहाँ पे X x X space equals space left bracket backslash back left bracket हाँ, space तो blank जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिस्ट बनाता left हूँ, bracket ठीक, right bracket तो सबसे जो पहली यूनिक फीचर है पाइथन की, पाइथन लिस्ट की, जो आपको मोस्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नहीं देखने को मिलेगी या पुरानी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे, वो ये है कि आप इस लिस्ट में, left bracket right bracket ठीक है, मल्टीपल वैल्यूज स्टोर कर सकते हो विथ मल्टीपल डेटा टाइप्स, और यू कैन से डिफरेंट डेटा टाइप्स। मतलब मैं इसी लिस्ट के अंदर में एक तो वैल्यू स्टोर कर सकता हूँ इंटीजर, दूसरी तो वैल्यू स्टोर कर सकता हूँ स्ट्रिंग, तीसरी वैल्यू स्टोर कर सकता हूँ बूलियन, चौथी स्टोर कर सकता हूँ फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा फायदा हमारे पास मिलता है यहाँ पे, ठीक है, पाइथन में। क्योंकि अगर आप जो ट्रेडिशनल लैंग्वेजेस पढ़ने जाओगे जैसे कि जावा, जैसे कि सी लैंग्वेज, तो यहाँ पे क्या होगा गाइज वहां पे कि पहले तो चीज को ये जो पाइथन में जो लिस्ट है, इसी लिस्ट को जावास्क्रिप्ट, जावा, सी प्लस प्लस, इन सब में इसको एरे के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? एरे के नाम से जाना जाता है, ARRAY, एरे। और इनमें लिमिटेशन ये होती है गाइस, एक्सेप्ट जावास्क्रिप्ट, ठीक है, एक्सेप्ट जावास्क्रिप्ट, जो जावा और सी प्लस प्लस में लिमिटेशन ये होती है कि आप एक एरे के अंदर, ये बोले तो पाइथन के टर्म्स में एक लिस्ट के अंदर यू कैन स्टोर मल्टीपल वैल्यूज विथ सेम डेटा टाइप, नॉट द डिफरेंट डेटा टाइप्स। ठीक है, बट पाइथन में ये लिमिटेशन आपकी नहीं रहती। X equals left ठीक है, blank ओके गाइस, नाउ right bracket left bracket right bracket right bracket तो मैं यहाँ पे left bracket right bracket अ, तो मैं यहाँ पे कुछ नेम्स स्टोर करते से close A H U L right राहुल, bracket comma close A M I E कोट में क्यों स्टोर करूँगी? नेम्स आर टेक्स्ट, submit close comma close A M I E Namit close नमित, comma close N I K H I L nickel close ऐसे करके मैंने 3-4 नाम स्टोर कर दिया। X equals left bracket close rattle close mid close namit close nickel close right bracket अच्छा, लेट से मैंने इसका नाम space एक्स क्यों रखा है, मैं इसका नाम रखता हूँ नेम्स, NAMES इस वेरिएबल का blank नाम नेम्स कर देता हूँ। ठीक है, names equals left bracket close rattle close mid close blank मैं प्रिंट करता हूँ, PRINT print left AES names like parent
C code C code रन करके देखता हूँ। P Y A O N Python P O G R A M to program to P Y left bracket rattle omit Namit nickel right bracket D colon ठीक है, तो हमारे पास ये सारे के सारे नेम जो है वो प्रिंट होगा। print left parent blank अब कुछ और चीज देखते हैं guys। तो अगर आपके पास ये नेम्स हैं और आपको इस लिस्ट के अंदर में कोई एक पर्टिकुलर नेम को ऐड करना है या किसी लिस्ट आइटम को ऐड करना है, तो आप ऐड कैसे कर सकते हैं? ठीक है, तो चलिए ऐड करने से पहले मैं आपको एक चीज दिखा देता हूँ। अगर आपको ये गिनना है, काउंट करना है कि कितने नंबर ऑफ लिस्ट आइटम्स प्रेजेंट हैं इस लिस्ट के अंदर, या अभी के केस में कितने लोगों के नेम्स प्रेजेंट है, तो आप चेक कर सकते हैं लेन फंक्शन से। जी हाँ, वही लेन फंक्शन जो हमने स्ट्रिंग के टाइम पे सीखा था नंबर ऑफ कैरेक्टर्स काउंट करने के लिए। तो अगर मैं यहाँ पे लेन फंक्शन का यूज करता हूँ, अच्छा एक गलती कर दी, इसको प्रिंट फंक्शन के अंदर इंक्लोज करना था। सेव कर दिया, करता हूँ, तो मुझे यहाँ पे 4 क्या क्या मिल गया। मैं यहाँ पे मैसेज डिस्प्ले करता हूँ, number of space people colon L comma blank print left parent quote number of people colon quote len left parent CC colon D colon backslash left bracket rattle omit Namit nickel right bracket number of people colon 4 D colon back ठीक है, program इस तरीके से हो गया blank राइट। अब अगर हमें इसमें कोई नया नाम ऐड करना है तो हम कैसे ऐड कर सकते हैं गाइस? इसको हम ऐसे ऐड कर सकते हैं। तो नया नाम ऐड करने के लिए एक फंक्शन आता है, ठीक है, जिसको आप नेम नाम के ऑब्जेक्ट के अंदर से कॉल कर सकते हो, जो आपने अभी क्रिएट किया है। तो अगर आप लिस्ट जो भी लिस्ट मतलब लिस्ट का जो भी आपने नाम रखा है, ठीक है, देखो किसी वेरिएबल के अंदर में अगर आप लिस्ट क्रिएट करते हो तो उस वेरिएबल का जो नाम होगा वो लिस्ट का नाम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने नाम का क्या नाम रखा है? नाम रखा है। ये कैसा जोक था, मतलब नेम रखा है, ठीक है, नेम नाम से वेरिएबल क्रिएट किया है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ नेम, फिर यहाँ पे लिखता हूँ अपेंड। अपेंड का मतलब होता है ऐड करना, तो अपेंड न्यू नेम, लेट्स से मैं अपना नाम डाल देता हूँ यहाँ पे, इट इज अनफेयर। और एक और चीज नेम, ठीक है, अब रन करता हूँ, लेकिन रन करके क्या होगा, नेम अपेंड होने के बाद डिस्प्ले भी तो होना चाहिए ना, तो डिस्प्ले वापस से डिस्प्ले करता हूँ, सेव करता हूँ, ठीक है। अब मैं रन करता हूँ, left bracket rattle omit Namit nickel right bracket number of people colon 4 left bracket rattle omit Namit nickel Lexman right bracket D colon back तो देखिए जो ऊपर वाला लिस्ट है ना वो तब एग्जीक्यूट हुआ, वो वाली लाइन जब क्या कहते हैं नेम अपेंड नहीं हुआ था, इसलिए 4 नेम दिखाया, पर उसके बाद वाली जो लाइन है वो तब एग्जीक्यूट हुई जब अपेंड हो गया, तो इसलिए यहाँ पे लास्ट में मेरा नाम भी शो कर रहा है, ठीक है गाइस। ये इस तरीके से इसको अपेंड कर सकते हैं। एक चीज तो ये हो गई। अच्छा दूसरी चीज क्या? दूसरी चीज हम इसको अपेंड तो हमने कर दिया, फिर अपेंड भी हम मतलब नाम आइटम हम ऐड भी जो है वो 2-3 तरीके से कर सकते हैं। तो एक तो हमने बताया अपेंड। अपेंड फंक्शन क्या करता है? अपेंड फंक्शन जो वैल्यूज है उसको एंड ऑफ द लिस्ट में ऐड करता है, जो भी न्यू वैल्यू होती है उसको एंड ऑफ द लिस्ट पे ऐड करता है। अगर हमें कोई वैल्यू को किसी पोजीशन नंबर पे इंसर्ट करनी है पर्टिकुलर, तो जैसे कि मैं चाहता हूं कि सेकंड नंबर पे जो भी नाम है उसके जगह पे कुछ और नाम डिस्प्ले हो जाए, तो वो हम कैसे कर सकते हैं गाइस? तो वो अगर हमें करना है तो हम कैसे कर सकते हैं कि इसको हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा नेम्स इंसर्ट, क्योंकि पर्टिकुलर जगह पे हम इंसर्ट कर रहे हैं। नाउ यहाँ पे आपको अपना पोजीशन नंबर डालना पड़ेगा। लेट्स से मैं यहाँ पे डालता हूँ 1, यानी कि सेकंड पोजीशन पे ऐड हो जाए किसका नाम ऐड करेगा? इस खुशबू। कोई लड़की भी तो होनी चाहिए ना, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता मैं। ओके, अब प्रिंट सेव left bracket rattle omit Namit nickel right bracket number of people colon 4 left bracket rattle omit Namit nickel Lexman right bracket left bracket rattle Kushbu omit Namit nickel Lexman right bracket D colon backslash pipe सेकंड नंबर पे खुशबू ऐड हो गया और बाकी सारे जो नेम्स थे वो आगे खींच सकते हैं, ठीक है। तो program ऐसे हम इंसर्ट कर सकते हैं। print left parent names right parent blank
नाउ वैसे ही गाइस एक और फंक्शन आता है, उसका नाम होता है एक्सटेंड। तो एक्सटेंड क्या करता है कि अगर हमें दो लिस्ट को आपस में ज्वाइन करना है या हमें किसी लिस्ट को एक्सटेंड करना है विथ अनदर लिस्ट, तो हम कैसे कर सकते हैं? blank, तो जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ AAES, names, dot, EXTEND, extend, left, right और parent, यहाँ पे तो आपको सबसे पहले लिखना पड़ेगा उसका लिस्ट, यहाँ पे मतलब पैरेंथेसिस के अंदर में आपको लिस्ट एंटर करनी left पड़ेगी। parent, right parent, left bracket, right bracket, तो मैं close, close, GOVIND, right गोविंद bracket, comma, close, और ADAA, rata, close, ये दो नाम मैंने लेट से ऐड कर दिए। names, dot, extend, left parent, left bracket, quote, rata, right bracket, right parent, blank, अब सेव करके प्रिंट PRINT, print left parent, WM, blank, right parent, print left parent, names right parent, सेव CC colon back D colon एंटर। backslash Python left bracket rattle omit Namit nickel right bracket number of people colon 4 left bracket rattle omit Namit nickel Lexman right bracket left bracket rattle Kushu omit Namit nickel Lexman right bracket left bracket rattle Kushu omit Namit nickel Lexman Dobbins Rata right bracket D colon back ठीक है, तो इस तरीके से ऐड program to फाइन। print left parent names right parent blank और यही सेम काम आप कर सकते हो प्लस ऑपरेटर से भी, यानी कि अगर मेरे पास एक लिस्ट है, लेट से अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे L1 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 space equals space left bracket 1 1 comma 2 2 comma 3 3 right bracket और L2 L2, L2 space equals space left bracket 4 4 comma 5 5 comma 6 6 right bracket और अगर मैं PRINT print प्रिंट right parent L1 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 plus L2 L2 करता हूँ, तो जैसे दो स्ट्रिंग आपस में ज्वाइन हो जाते हैं, ऐसे ये दो लिस्ट आपस में CC ज्वाइन colon हो D जाती है। colon मैं backslash करता Python हूँ left bracket blank left bracket 1 2 3 4 5 6 right bracket तो इस तरीके से program ज्वाइन हो जाएंगे आपस में। होप गाइस सबको ये समझ में आ गया होगा। मैं इसको क्लोज करता C हूँ colon back और आगे बढ़ते हैं। तो ने FTE दूसरा A D notepad पाइथन space का था, PRO GRAM उसमें बहुत 3 बढ़िया program 3 कर दिया PY मैंने। D colon backslash notepad no yes button space ओके, program 3 dot blank अब आगे बढ़ते हैं कुछ और नई चीजों के साथ। तो मैं वापस से, अच्छा पुराने वाले से मैं कॉपी कर लेता हूँ, program 2 dot names equals left bracket names equals left यहाँ पे program 3 कॉपी dot कर लेता blank हूँ। ठीक है, blank names equals left bracket blank अब मेरा, अब यहाँ पे blank गाइस हमने नेम्स तो बहुत सारे क्रिएट कर दिए, ठीक है। अब अगर फॉर एग्जाम्पल हमें कुछ डिलीट करना है, फॉर एग्जाम्पल नेम्स में से हम डिलीट कैसे कर सकते हैं? blank तो डिलीट करने के लिए हमारे पास एक फंक्शन आता है, उसका नाम होता है गाइस पॉप फंक्शन। कौन सा फंक्शन? पॉप blank फंक्शन। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट PRINT या प्रिंट नहीं, TNIRP पॉप फंक्शन के लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ डिलीटेड DELETED deleted line ITEM item आइटम space equals space इक्वल्स टू AAES names dot POP top left parent right parent और प्रिंट PRINT print right parent DELETED deleted line ITEM item comma quote AAS hat DEEN bin space DELETED deleted bang print left parent deleted line item quote has been deleted right parent blank right parent quote ठीक है। blank तो मैंने ये क्या किया? अब आपके मन में ये क्वेश्चन होगा गाइस, देखिए ऊपर तक लिस्ट बनाया है, names equals left bracket quote rattle quote namit quote ये तो बहुत नॉर्मल है, अब तक आप लोग इतने ज्ञानी तो हो गए हो। अब इसके बाद deleted line item equals names dot top left parent right parent तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि अगर नेम्स डॉट पॉप करेंगे और लेफ्ट हैंड राइट हैंड करेंगे तो क्या होता है? तो ये होता है कि वो आइटम को डिलीट करता है, पर कौन से आइटम को? जो सबसे लास्ट में होती है, यानी कि लास्ट मोस्ट आइटम जो है वो डिलीट होती है पॉप फंक्शन से। पर पॉप फंक्शन यूं ही डिलीट नहीं करता, पर साथ में क्या कहते हैं, फेवर करके जाता है। फेवर क्या करके जाता है कि जो आइटम डिलीट किया उस, ये तो पता है कि लास्ट वाली आइटम, पर लास्ट वाली में उसकी वैल्यू, मतलब लास्ट वाली आइटम डिलीट तो हुई पर जो आइटम डिलीट हुई उसकी वैल्यू क्या थी, वो उसने कौन से आइटम को डिलीट किया, ये फुटप्रिंट छोड़ करके जाता है। और उस फुटप्रिंट को, जिसको हम लोग बोलते हैं रिटर्न वैल्यू, उसको हमने एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया, जिसका नाम दिया हमने डिलीटेड अंडरस्कोर आइटम। names deleted line item equals names dot top left और फिर मैंने प्रिंट करा दिया डिलीटेड अंडरस्कोर आइटम कॉमा हैज बीन डिलीटेड। print left parent तो अब ये आइटम का नाम हैज बीन डिलीटेड blank शो होगा। मैं रन करके दिखाता हूँ। C colon backslash Windows backslash PY AON Python space PRO GRAM प्रोग्राम 3 program 3 PY nickel has been deleted D colon backslash Python YouTube निखिल हैज बीन डिलीटेड। program तो blank निखिल अगर डिलीट हो गया तो निखिल शो भी तो नहीं होगा ना, तो प्रिंट print left AAES names right parent नेम्स करके वापस C से प्रोग्राम रन करता D हूँ, colon backslash nickel has been deleted left bracket rattle omit namit right bracket D colon backslash तब निखिल नहीं डिस्प्ले हो रहा है गाइस। अंडरस्टूड? program फाइन। print left आगे बढ़ते हैं अपने blank प्रोग्राम में। अब इसी फंक्शन के अंदर अगर मैं यहाँ पे लिखूं लेट्स से नेम्स
D E L E T E D. Deleted line. T M item space equals space. A E S names dot P O P. Top left parent. और यहाँ पे अगर आप एक पर्टिकुलर कोई इंडेक्स नंबर स्पेसिफाई हो, लेट से मैंने यहाँ पे 1 स्पेसिफाई कर दिया, 1 right parent. तो उस पर्टिकुलर इंडेक्स नंबर की वैल्यू डिलीट करेगा। और मैं अगर प्रिंट P I N T. Print left parent. Right parent. Right parent. D E L E T E D. Deleted line. T M item comma. Quote. 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 A S hat D E E N N space D E L E T E D. Deleted blank blank. और P I N T. Print left parent. A N E S names right parent. अब सेव कर देता हूँ C C और रन करता हूँ। D colon backslash Python Yelchin like Nickel has been deleted. Left bracket rattle. Omit. Namid right bracket. Omit has been deleted. Left bracket rattle. Namid right bracket. D colon backslash. तो अमित जो है वो डिलीट हो गया, जो कि सेकंड नंबर पोजीशन पे था। आर यू गेटिंग माय पॉइंट गाइस? Print left parent. ओके, Blank. चलिए यहाँ तक भी सब कुछ सही है। नाउ Blank. एक और फंक्शन डिलीट करने के लिए, उसका नाम होता है रिमूव फंक्शन। तो रिमूव फंक्शन क्या करता है? रिमूव फंक्शन रिटर्न्स नथिंग, मतलब वो कुछ भी फुटप्रिंट छोड़ के नहीं जाता, बट इट डिलीट्स द स्पेसिफाइड वैल्यू। Blank. इट ओनली डिलीट्स द स्पेसिफाइड वैल्यू। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेट्स से नेम A N E S names dot R E M O V E. Remove left parent. Right parent. Right parent. Quote quote quote. A H U L. राहुल, Names dot remove left parent. Quote rattle quote right parent. Blank. सेव P I N T. Print left A N E S names right parent. सेव C C देन D colon backslash pipe. Nickel has been deleted. Left bracket rattle. Omit. Namid right bracket. Omit has been deleted. Left bracket rattle. Namid right bracket. Left bracket. Namid right bracket. D colon back. तो सिर्फ अमित बचा, ठीक है, राहुल को भी मैंने डिलीट कर दिया। Program. Program. So these are guys methods of deleting a value from list. C colon. Now let's F E A P notepad space P O G R A M. Full program P Y. Notepad. Notepad. No yes button. Space. Program for dot blank. कॉपी कर लेता हूँ। Names equals left bracket blank. Carriage return blank. अब यहाँ पे गाइस हमारे पास आता है एक और नया ट्विस्ट। Blank. यहाँ पे अब हम सीखेंगे कि हाउ कैन बी, 1 सेकंड में टेबल को थोड़ा सा आगे कर लूँ, यस। तो नाउ अब यहाँ पे ट्विस्ट आता है गाइस कि हम किसी पर्टिकुलर वैल्यू को फाइंड कैसे कर सकते हैं। Names equals left bracket blank. हाँ, हम फाइंड भी कर सकते हैं। तो फाइंड करने के लिए हमारे पास एक फंक्शन आता है, उसका नाम होता है डॉट इंडेक्स फंक्शन। Blank. तो जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट P I N T. Print left parent. Right parent. Right parent. A N E S names dot I N D E X. मतलब मैंने इंडेक्स Index left parent. प्रिंट, Right parent. और इस इंडेक्स फंक्शन के Right parent. पैरेंट केसेस में अगर मैं वो वैल्यू स्पेसिफाई Quote, लेट्स से मुझे फाइंड करनी है कि लक्ष्मण की पोजीशनिंग क्या है या अमित की पोजीशनिंग क्या है, लेट्स से M I T. Print left parent. Names dot index left parent. Colon mid colon right parent. सेव करता हूँ C C colon एंड रन करता हूँ। P O G R R. सॉरी, P Y O N Python space P O G R A M. Full program for P Y. एंटर करता हूँ, 1 D colon backslash Python. तो मुझे 1 आंसर मिला, यानी कि 1 नंबर इंडेक्स पे अमित बैठा हुआ Full है program. Print left आसन ग्रहण कर, blank. ठीक है नहीं? P I T. Print left parent. A N E S names left bracket 1 right parent. अगर मैं लिखता हूँ C C colon back D colon backslash 1 omit D colon back तो मिल जाएगा मुझे अमित। program ये है गाइस बेसिकली, इसको तो डिलीट करता हूँ, काम नहीं है। carriage return blank. तो इस तरीके से हम किसी वैल्यू को फाइंड भी कर सकते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, सो F O T E A D notepad P O G R A M. 5 program P Y D colon backslash notepad no yes button space program 5 अगेन पेस्टेड द लिस्ट। blank. Names equals left bracket quote rattle quote omit quote namid blank. अब मैं काम करता हूँ यहाँ Names पे equals कुछ ऐड carriage करता हूँ, return जैसे right bracket quote L quote blank. Names equals left bracket quote rattle quote omit quote namid quote nickel quote right bracket carriage right bracket निखिल के comma, बाद मैं quote. काम करता हूँ वापस से M I T अमित ऐड omit quote करता हूँ। blank. अब इसको सेव करता हूँ। अब हमारे पास एक फंक्शन होता है उसका नाम होता है काउंट फंक्शन। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ P I T print left right parent left right parent प्रिंट और यहाँ पे लिखता हूँ A N E S names dot O U N T count काउंट। left parent right parent काउंट फंक्शन अगर हम कॉल करेंगे तो ये हमें ला करके देगा इसके पैरेंथेसिस के अंदर में जो भी वैल्यू स्पेसिफाई quote करेंगे। quote लेट्स से मैंने अमित लिखा MIT है, तो ये अमित कितनी बार, या जो वैल्यू स्पेसिफाई करूंगा वो कितनी बार एक लिस्ट में अपीयर होगा, उसकी फ्रीक्वेंसी काउंट करके बताता है। C C colon back D colon backslash Python YouTube lectures space Y P dot 5 N O T E P A D space D ओके, P Y A O N रन करता हूँ 2 D colon backslash Python YouTube तो 2, यानी कि ये जो अमित है वो ट्वाइस अपीयर होगा। program बट इसके जगह पे अगर मैं कोई और नाम लिखूं, लेट्स print left से parent blank right quote T quote omit selected अमित की जगह पे लेट्स से A H U L print राहुल, left parent names dot count left parent quote rattle quote right parent सेव करता C हूँ colon back D colon back 1 D colon तो 1 अपीयर है। program 5 the right
right parent, पर quote, व्हाट इफ कि अगर मैं कुछ ऐसा नाम लिख दूं जो है ही rattle नहीं, selected, जैसे L-A-X-A-N, लक्ष्मण लिख दूं C colon back D colon backslash 0 D colon back तो जीरो, यानी कि जो वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करती है वो जीरो program काउंट होगी। N, quote, ओके, सो ये भी गाइज हमने सीख लिया। तो हमने ये सीख लिया कि फाइंड कैसे करते हैं, हमने ये सीख लिया कि हम काउंट कैसे करते हैं। अब कुछ C colon न्यूमेरिकल back कॉलम्स के ऊपर भी काम कर लेते हैं, आई मीन न्यूमेरिकल वैल्यूज के ऊपर। तो अगर मैं लिखता हूँ S-T-E-P-A-D notepad space P-R-O-G-R-A-M 6 program city Y D colon backslash notepad no yes button space program 6 dot blank अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ N नंबर U M S num space equals space इक्वल टू left bracket 1 1 comma 2 2 comma 3 3 comma 4 4 comma 5 5 right bracket nums equals left bracket 1 2 3 4 5 right bracket blank तो अगर मैं यहाँ पे blank प्रिंट करता हूँ, P-R-I-N-T print left parent right parent एक फंक्शन आता है गाइस, उसका नाम होता है सम फंक्शन। S-U-M sum left parent N-U-M-D D S right parent print left parent sum left parent nums right parent blank ओके, तो अगर हम सम नाम के फंक्शन के अंदर में जिसमें डॉट नहीं लगता, मतलब उसको लिस्ट डॉट सम करके नहीं लिखते, उसको हम लोग डायरेक्टली सम फंक्शन लिखते हैं। ठीक है, blank ऐसे। S-U-M sum left parent right parent ठीक है, left sum selected carriage return तो अगर blank हम सम के अंदर में यानी कि सम लिख करके उसके पैरेंथेसिस के अंदर में अगर हम कोई लिस्ट एंटर करते हैं और उस लिस्ट के अंदर में अगर सारे के सारे न्यूमेरिकल वैल्यूज है गाइस, तो फिर उन सब का सम ला करके हमें दे C देगा। code और 1 + 2 + 3 + 4 + 5 का सम क्या होता है गाइस, ये आप लोग मुझे बताओ तब तक मैं P-Y बता रहा हूँ। T-O-N Python space तो P-O-G-R-A-M 6 6 0 6 6 dot P-Y 15 D colon backslash Python YouTube इसका lectures back आंसर होता है गाइस 15। ठीक है, program blank तो print left parent P-R-I-N-T left parent S मैं left यहाँ पे parent S मैसेज को डिस्प्ले कर quote दूंगा। quote S-U-M sum O-L-T space N-U-M-B E-R-S numbers colon S comma blank print left parent quote sum of the numbers colon quote sum left parent nums right blank वैसे ही P-I-N-T print left right parent अगर मुझे quote quote स्मॉलेस्ट नंबर डिस्प्ले करना है, यानी कि K-E space the selected K-E space the selected T-T-A-E space A-L-L-E-S-T smallest N-U-M-B-R number I-S is colon right parent comma तो इसके लिए सम के जैसा ही फंक्शन होता है मिन फंक्शन है। M-I-N मिन min left parent N-U-M-S nums right parent सेव C-C D colon backslash Python YouTube lectures backslash list greater Python program sum of the numbers colon 15 the smallest number is colon 1 D colon स्मॉलेस्ट नंबर 1। programs print left parent blank सिमिलरली एक मैक्स नाम का फंक्शन आता है, सो P-I-N-T print right parent quote quote T-A-E space the selected T-T-A-E space A-R-G-E-S-T largest N-U-M-B-R number I-S is colon right parent comma A-X max left parent N-U-M-S nums right parent सेव करता हूँ। C colon back D colon back sum of the numbers colon 15 the smallest number is colon 1 the largest number is colon 5 D colon back तो यहाँ पे मुझे लार्जेस्ट नंबर मैक्स फंक्शन से, स्मॉलेस्ट नंबर मिन फंक्शन से, इनका सम मुझे इससे मिल जाएगा। अब गाइस फटाफट आप लोग बताओ कि एवरेज हम कैसे निकाल सकते हैं। अगर किसी लिस्ट में 5 नंबर दिए हुए हैं, लेट्स से स्टूडेंट्स के मार्क्स दिए हुए हैं, तो हम उसका एवरेज कैसे निकाल सकते हैं या उसका परसेंटेज कैसे निकाल सकते हैं। अब ये सब गाइस आप लोग को बताना पड़ेगा, राइट। फटाफट बताइए, फटाफट बताइए। और अगर आप लोग कमेंट करके बताते तो मुझे खुशी होगी, और अगर आप नहीं बता पाते हैं गाइस तो मैं कमेंट करके आप लोग को बता दूंगा, ठीक है। सो ये थे गाइस कुछ लिस्ट के फंक्शंस। अब मैं एक और चीज बताना चाह रहा हूँ स्पेसिफिकली, और वो है गाइस 7:59 p.m. वो है गाइस टपल्स के बारे में कि व्हाट आर टपल्स। मैं थोड़ा सा टपल्स के बारे में आपको समझा देता हूँ। तो मैं अगर C colon backslash P-R-O-O पाइथन P-Y-T-O-N N सॉरी पाइथन नोटपैड L-O-T-E-P-A-D notepad space P-R-O-G-R-A-M 6 program P-Y D colon backslash notepad right parent blank ये नहीं C colon D colon space Y P dot 6 7 D colon backslash notepad no yes button space अब मैं program गाइस 7 आप dot लोगों को blank बताता हूँ कि टपल्स क्या होते हैं। गाइस देखिए, टपल्स लिस्ट की तरह ही होते हैं पर वो इम्यूटेबल होते हैं। इम्यूटेबल का मतलब क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ एक एग्जांपल से। blank लेट्स से मैंने यहाँ पे लिखा N U M S num space equals space equals to left bracket 1 1 comma 2 2 comma 3 3 right bracket 12, 2, 3। nums equals left bracket 1 2 3 right bracket blank अगर मैं प्रिंट करता हूँ इसको P-R-I-N-T print left parent N-U-M-S nums right parent तो ये एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। मैं C colon backslash Windows P-Y T-O-N Python space P-O-G-R-A-M 7 program set P-Y left bracket 1 2 3 right bracket D colon backslash
Program. लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि इस जो सेकंड नंबर की जो वैल्यू है सेकंड पोजीशन पे यानी कि 2, इसको अपडेट करके मैं 4 कर दूं, क्या ऐसा करना पॉसिबल है? Blank. तो अगर हम मुझे ऐसा करना है तो मैं इसको कैसे कर सकता हूँ? अगर मुझे ऐसा करना है तो Blank. इसके लिए मैं सिंपली लिखना है मुझे नम, NUMS. यानी कि वो लिस्ट का नाम, Nums left bracket right bracket. Right bracket. वैल्यू जिसको मुझे अपडेट करनी है यूजिंग इट्स इंडेक्स नंबर, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1. 1 Blank. Space. इक्वल्स Equals. टू Space. द न्यू वैल्यू विच आई वांट टू अपडेट 4. 4, 4. प्रिंट PRSE. Print left NUMS. Nums right parent. सेव CC colon. रन। D colon backslash type left bracket 1 2 3 right bracket left bracket 1 4 3 right bracket D colon back. तो इस तरीके से मैंने इसको अपडेट कर दिया। Programs. तो ये जो प्रॉपर्टी है कि आप कोई भी वैल्यू डिफाइन करके, एक डेटा टाइप में कोई भी वैल्यू डिफाइन करके और फिर आप उसको अपडेट कर सकते हैं, ये जो चीज है गाइस, 1 सेकेंड, ओके गाइस। सो ये जो प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को गाइस हम लोग बोलते हैं म्यूटेबिलिटी। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं गाइस म्यूटेबिलिटी, Print left parent. यानी कि म्यूटेबल, यानी कि हम किसी भी वैल्यू को अपडेट कर सकते हैं, किसी भी एग्जिस्टिंग वैल्यू को हम अपडेट कर सकते हैं एक बार डिफाइन करने के बाद। Print left parent. Nums right parent. अब मैं क्या करता हूँ, इसको कमेंट आउट कर देता हूँ सबसे पहले। Nums equals N. Blank. Quote. Print left blank. Quote. कमेंट आउट कर दिया। अब मैं सिखाता हूँ कि टपल्स क्या होता है। तो टपल्स भी सेम काम करता है। अगर मैं लिखता हूँ NUMS. Nums space equals space. टपल्स बनाने के लिए Left bracket. Right bracket. नहीं यूज करना होता है, Right left bracket. बल्कि Left parent. Right parent. यूज करना होता है। ठीक है, Right parent. इसके अंदर भी सेम तरीके से 1 1 comma 2 2 comma 3. 3 Nums equals left parent. 1 2 3 right parent. और Blank. जितनी भी मैंने फंक्शंस और स्लाइसिंग इंडेक्स से गेट करनी वैल्यूज, जितनी भी चीजें मैंने लिस्ट के बारे में सीखा वो सब कुछ वैलिड है टपल्स में, बट एक ही चीज जो वैलिड नहीं, वो ये है कि मैं यहाँ पे नहीं लिख सकता। NUMS. Nums left bracket. 1 1 right space equals space 4. अगर मैं लिखूंगा तो क्या होगा, CC colon. ये D देखिए colon backslash type. Trace back left parent. Most recent call last right parent colon. Blank type error colon. Tuple object does not support item assignment. क्या बोल रहा है कि टपल ऑब्जेक्ट डजंट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। ठीक है भाई? Programs. तो यही एक प्रॉपर्टी है जो एक न्यू डेटा टाइप को जन्म देती है, जो कि है टपल। तो अगर हमें किसी भी लिस्ट को ऐसा बनाना है जो कि फर्दर कोई उसमें अपडेशन ना कर सके, तो हमें उसको टपल में बनाना चाहिए गाइस। इट इज रेकमेंड। Nums left bracket 1 right. सो आई होप गाइज आप लोग को अच्छा लगा होगा आज का वीडियो, आज की क्लास, आज का लेक्चर। ऐसे सपोर्ट करते रहे मेरे पाइथन सीरीज को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, ताकि और भी जो लोग हैं जो पाइथन सीखना चाहते हैं विथ स्क्रीन रीडर वो सीख सकें। और मेरा जो मोटिव है गाइस कि टेक को एक्सेसिबल बनाना, वो मोटिव पूरा हो सके। थैंक यू सो मच गाइस। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अगर पहले से सब्सक्राइबर हैं मेरे चैनल के तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।